तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपको एडिटोरियल 5 अगस्त का समझाने वाला हूँ। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा कि मैंने सारे आर्टिकल्स कट पेस्ट करके यहाँ रख दिए हैं। मैं आपको एक लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और हर लाइन का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा, तो बेस्ट ऑफ माई अबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ये वाला टॉपिक। द जीएसटी काउंसिल रीटेक ऑन गेमिंग बेट्स डज नॉट प्रोवाइड इनफ सर्टेनिटी। अगर आपने न्यूज़ फॉलो की थी तो 28% जीएसटी लागू करने का डिसीजन लिया था गवर्नमेंट ने ऑन ऑनलाइन गेमिंग, जो भी अर्निंग्स रहे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। लेस देन अ मंथ आफ्टर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल appeared to have sealed a compact on the long deliberated issue of the appropriate tax to be levied on casinos, horse racing, and the booming online games industry. It was convened afresh this Wednesday to revisit the matter. The rethink on Council's move to impose 28% GST on the face value of bets placed by participants was ostensibly triggered by an outcry from industry and nudge from the Electronics and IT Ministry that is steering the e-game policy. इसका मतलब कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल है। कुछ गेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला है कसिनो, दूसरा है हॉर्स रेसिंग, और जो बूमिंग ऑनलाइन गेम, जो बहुत सारे कोई ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं पबजी टाइप से, जो भी मुझे शायद आपको पता नहीं है। उसमें बोला है कि काउंसिल ने 28% जीएसटी हम डालेंगे फेस वैल्यू ऑफ बेट्स। कसिनो में जो बेट्स लगाते हैं, चिप्स खरीदते हैं, अगर आप कभी कसिनो गए हैं या फिर किसी मूवी वगैरह में देखा है, उन चिप्स को जो जितने रुपए का, 1 लाख रुपए समझिए, 1 लाख के चिप्स खरीदे गए हैं, उसमें 28% जीएसटी मारने का प्लान किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, सजेस्टेड बाय क्या है? जीएसटी काउंसिल। याद रखिए, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स रहते हैं, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए काम आएगा। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स हैड termed it a death knell for the sunrise sector with billions of dollars in investment and thousands of jobs at stake, and stressed the levy is not in sync with global norms that tax gross gaming revenue. Sikkim and Goa's pleas for casino tax to be levied on the same manner, which did not find favor with the center, and most trips of the council decided to stick to the stance with one minor but not trivial concession. Simply put, if one enters, ये example, if one enters a course on Derby Day and bets 1,000 rupees on a horse with moderate odds, which ends up winning, and bets part of that bounty on another horse in the next race, the tax levied will remain confined to an initial 1,000 rupee wager. This formulation addresses the prospect of repeat taxation on reinvested earnings, drawing a muffled sigh from the nascent industry that still remains anxious on the implications of taxes likely to kick in from October 1st. अगर आपने 1,000 रुपये लगा दिए एक घोड़े पे, जो जीतने वाले का थोड़ा बहुत चांस है, ठीक है, तो उस 1,000 रुपीज़ पे आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब आप जहाँ पे बेट लगाओगे, 1,000 रुपीज़ का 28% कितना होता है? 280 रुपीज़ आपको टोटल देना पड़ेगा। 1,280 बेट प्लेस करने के लिए 28% जीएसटी लगेगा। देखते हैं कैसे कंक्लूड हो रहा है आर्टिकल। इट इज नो वंस केस दैट जीएसटी काउंसिल शुड ओनली टेक यूनानिमस डिसीजन, as finance minister Nirmala Sitharaman pointed out. Even the taxation of lotteries was firmed by the majority vote, but the council's promise of a review of the tax 6 months after its implementation, even if it was just an attempt to placate the dissenting voices of small states such as Goa and Sikkim, bears a lack of conviction in the resolution, while users and industry now await the fine print of the legislative changes to GST laws and the rules to subsequently notified by the Revenue Department. The room for a review, which could swing either way, creates a cloud of uncertainty on business corporations operations and fresh investment plans. Council has clarified or
tweaked tax treatment for items which warranted, but an announcing review at the onset sets an awkward and potentially dangerous precedent that could thwart India's aspiration of being a reliable investment destination with predictable policies. The Council should not give the impression that it can be swayed so easily by the representations from industry or demands from of individual states. ठीक है, आर्टिकल तो सिंपल था, वो मैंने आपको समझा दिया। सब में सिर्फ यही लिखा है कि 28% जीएसटी आपको देना पड़ेगा जिस वैल्यू पे आप खेल रहे हैं। अगर मैं आपको यूपीएससी के लिए कुछ एक्स्ट्रा पिल्स दूंगा इस यूज से, तो ये जो अप्रोच है इसको बोलते हैं सोशलिस्ट अप्रोच। सोशलिस्ट गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम 28% टैक्स डालें उन लोगों पे जो लोग गेमिंग में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास गेमिंग के लिए अच्छे खासे पैसे हैं। हम उनसे, क्योंकि उनका रिटर्न काफ़ी हाई आता है काफ़ी कम टाइम में काफ़ी कम एफर्ट्स डाल के, ऑल्दो उनका दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, ऑब्वियसली दिमाग का एफर्ट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल एफर्ट, बट क्योंकि वो लोग थोड़े आराम से काम कर रहे हैं और तो उस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि 28% जीएसटी डाला जाए और वो जो 280 रुपीज़ है उसको वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए। आपको पता ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी आर अ सोशलिस्ट नेशन। तो गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे हिसाब से जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मैंने आर्टिकल पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि 28% लोगों के वेलफेयर में जाए, जो आगे और प्रोजेक्ट स्कीम्स लेके आएंगे, अलग अलग टाइप की स्कीम्स। कुछ भी स्कीम हो सकती है, पीएम किसान योजना, कोई भी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कंट्रोल करने के लिए, या जैसे अभी इन्फ्लेशन हो रहा है हमारा, टोमेटो प्राइसेस बहुत हाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो वैसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, देखते क्या है। अमेरिका's pursuit of Saudi Israel rapprochement, क्या लिखा है देखते हैं। The the pow the powerful prosperity of the Middle East to spring surprises is on call again. This time is about the chances of success dodged, albeit quite. United States diplomacy to reconcile regional powerhouses via Saudi Arabia and Israel. Ironically, this quest by the Biden administration is taking under challenging circumstances. The White House has had तो लिखा है रिलेशंस विद द लीडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। अच्छा ही रिलेशन है क्योंकि हमें पता है इसराइल और सऊदी के अच्छे फ्रेंड हैं यूएस, और उनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है उन्हें। इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड सऊदी क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोहम्मद बिन सलमान। Mr. Netanyahu heads an extreme right-wing coalition determined to accelerate the Jewish settlements in the occupied West Bank and curb the judiciary independence. The US strongly opposes both under the Saudi crown prince, initially ostracized by the Biden administration for his alleged involvement in the General Khalid murder. The kingdom has been nurtured towards the Washington। ठीक है, तो इस पहले इसमें कुछ ज़्यादा दिखा नहीं है। कुछ पुरानी न्यूज़, जो आई थिंक एक जर्नलिस्ट की डेथ हो गई थी किसी ड्रोन के थ्रू, तो उसका जिम्मे जो इल्ज़ाम है वो प्रिंस के ऊपर लगाया गया था, सऊदी के प्रिंस के ऊपर। कुछ प्रूफ नहीं हुआ है ऑब्वियसली। इसके अलावा इसमें लिखा है कि नेतन्याहू का स्टांस क्या है। नेतन्याहू का वो इज ही इज प्योरली राइट विंग है। वो चाहता है कि जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे फुल उनका इजरायली लोग रहे। ठीक है, ये तो नहीं लिखा, कुछ रेलेवेंट नहीं है ज़्यादा, जीके टाइप का इन्फॉर्मेशन। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, सऊदी इनिशिएटिव। अब देखते हैं कि सऊदी का इनिशिएटिव क्या है। आफ्टर नियरली 8 decades of US Saudi Energy for Security Compact of 1945, Riyadh has been assiduously diversifying its strategic options. It has reconciled, at least tactically, with its arch enemy Iran through Chinese mediation, hosted the Chinese president for 3 summits in Riyadh। ठीक है, in Saudi, the Gulf Cooperation GCC, जिसको बोलते Gulf Cooperation Council, and the Arab countries cooperated with Riyadh under the Organization of Petroleum Export Countries, OPEC countries जो हमारी है। क्या लिखा है देखते हैं। oil prices and facilitate return of Syria to Arab food. All these in your face. Saudi initiative challenges the US interest. The diverse President Joe Biden's bid for rejection next year, re-election next year.
Again, this obstructive backdrop, the White House has led connected campaign to persuade Saudi Arabia to normalize its relation with Israel. The proposal has been on the Saudi since November 2020 when Saudi Prince and Netanyahu had an unpolished meeting in Riyadh, Saudi Arabia. ठीक है, क्या लिखा है? It has gained traction. Blinken visiting Saudi Arabia to be received by the Saudi prince, while the Saudis have not rejected the idea of out of hand, they have reportedly put forward daunting pro-conditions, said North Atlantic NATO, to include NATO, US Security Treaty Organization, American Weapons Systems approval for the acquisition of civilian nuclear technology. ठीक है, तो जो इस पैराग्राफ में यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। आपको अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, जो इजराइल है, इजराइल इज अ फ्रेंड ऑफ यूएस, ठीक है। यूएस इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ सऊदी, बट ट्रिक देखिए क्या, यूएस नीड्स सऊदी क्योंकि उनके पास क्या है, ऑयल, ऑयल मनी। ओपेक ओपेक कंट्रोल कर सकते हैं ये लोग, और जीसीसी के भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है ये लोग। अब इसराइल जो है वो जनरली सऊदी से अच्छा रिलेशन नहीं है उतना, है ना। यूएस चाहता है कि क्योंकि इसराइल ऑलरेडी एक एलाय है यूएसए का, वो चाहता है कि इसराइल और सऊदी के बीच में रिलेशन अच्छे कर दे, दोनों को मिला दे थोड़ा सा। उससे क्या होगा कि वो यूएस से इसराइल के थ्रू सऊदी के ऊपर अलग अलग टाइप का प्रेशर क्रिएट कर सकती है, ताकि ऑयल प्राइसेस को वो लोग यूएस के अगेंस्ट ना कर दें। क्योंकि आपने कुछ, आई थिंक लास्ट वीक या एक दो हफ्ते पहले जैसे ही सऊदी प्रिंस ने बोला कि हम लोग कुछ 1 बिलियन टन से ऐसा कुछ ऑयल हम लोग कम कर देंगे यूएस को देना, तो यूएस शॉक हो गया था, क्योंकि अगर वहाँ से इतना ऑयल नहीं आएगा तो सऊदी ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल कर सकती है, ऊपर लेके जा सकती है, नीचे जा सकती है। यूएस के लिए एक खतरा है, डेंजर। एंड स्पेशली 2024 इलेक्शन है, यूएस इलेक्शन, उसके लिए बाइडेन को जो उनका जो जॉब्स की प्रॉब्लम चल रही है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऑयल, क्योंकि उसके थ्रू वो प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं और जॉब्स क्रिएट और हटा सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल एक पैसे का गेम है यहाँ पे, बस ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें लिखी हुई है, उसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है देखते हैं। A convergence, but with different motives. While US, Saudi, and Israel may converge at proposed reconciliation, their respective motives differ. ऑब्वियस है, हर कोई अपना फायदा चाहता है। इसराइल चाहता है कि कोई भी डील साइन हो हमें फायदा मिले, यूएस चाहता है कोई भी डील साइन हो हमें फायदा मिले, सऊदी चाहती है कोई भी डील साइन हो हमें फायदा मिले। फर्स्ट, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डीपली कंसर्न विद द growing ingress by China and Russia in Middle East wants to re-entrench the pax। इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल है। सऊदी सऊदी अब ईरान से बात कर रहे हैं, जितना न्यूज़ में है, सऊदी है ना, ईरान से बात कर रहे हैं। और मीडिएट कौन कर रहा है, पिछले पैराग्राफ में लिखा हुआ था, मीडिएट कर रहा है चाइना। अगर चाइना मीडिएटर बन जाता है, मतलब उसके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं सऊदी से भी और ईरान से भी, और दोनों के पास ऑयल है, दोनों के पास ऑयल है। ईरान भले ही यूएस का दुश्मन है, लेकिन अभी तक खड़ा हुआ है स्ट्रेट। रीज़न क्या है, ऑयल, उनके पास ऑयल है, वो चैलेंज कर सकते हैं, पैसा है। चाइना चाहता है कि सऊदी और ईरान के रिलेशन वो ठीक करे, ताकि सऊदी भी चाइना को सपोर्ट करे वक्त आने पर, और ईरान भी सपोर्ट करे चाइना को वक्त आने पर, है ना। और ये किससे ये देखा नहीं जा रहा है, यूएसए से। यूएसए भी ये देख नहीं सकता कि चाइना कंट्रोल कर रहा है मिडिल ईस्ट में। इवन रशिया रशिया को भी चाइना इंक्लूड कर रहा है कि रशिया से भी थोड़े फेवर्स ले ले, उनकी भी थोड़ी हेल्प कर दे, और मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए, क्योंकि वही है, मिडिल ईस्ट में जिसका इन्फ्लुएंस है ऑयल ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है ना। क्या लिखा है, अमेरिका ओवर द रीजन बाय ब्रिंगिंग टू ट्रेडिशनली प्रो वेस्ट रीजनल प्लेस टुगेदर, आल्सो फील्स फॉस्टरिंग सऊदी अरेबिया अंडर द क्राउन प्रिंस एज ठीक है। Moreover,
restore diplomatic ties with Israel would balance kingdoms recent reconciliation with Iran। देखिए अगर आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे है ना, तो इसमें बहुत कुछ लिखा है, चिकनी चुपड़ी बातें, बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर दिए, पर मैंने आपको फंडा समझा दिया ऑलरेडी। इस तो मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ है ना, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन ना रहे किसी को भी, फिर ही समझा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, यूएस का मिडिल ईस्ट में एक ही दोस्त है, कौन है? इसराइल। अब अगर उसको मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस रखना है तो इसराइल को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और इसराइल की वो दोस्ती करना चाहता है किससे? सऊदी से। लेकिन सऊदी बोलता है कि यार अब यूएस, सऊदी को पता है कि इसराइल के थ्रू यूएस कंट्रोल करना चाहते हैं सऊदी को, तो सऊदी ने क्या किया? डाइवर्सिफाई कर दिया अपने जीसीसी में, जीसीसी के थ्रू प्राइस कंट्रोल स्टार्ट किया, ओपेक के थ्रू प्राइस कंट्रोल स्टार्ट किया, चाइना को भी इंक्लूड कर दिया, इतने सारे स्टेक होल्डर्स लेके आ गई है कि अब यूएस के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। और मेरे हिसाब से बाइडन तो रहेगा नहीं नेक्स्ट इलेक्शन, विल डेफिनेटली बी डिफीटेड। देखते हैं कौन बनता है नेक्स्ट प्रेसिडेंट। बताइए आप, अगर आपको इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छा, मतलब आर्टिकल में तो जो भी है पर काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको कोई भी डाउट आया तो। ठीक है। द लेसन्स ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे। ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये पूरा आर्टिकल पढ़िए जो भी इसमें लिखा है ना, खुद से पढ़िए। खुद से पढ़ने का जो एडवांटेज है वो आपको काम आएगा ऐसे में। मैं आपको रीड तो कर ही सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ, बट ऐसे के में आपको बहुत काम आएगा। एक बार खुद से पढ़िए, और खुद से पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक लाइन में डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं हर डाउट को एड्रेस करूँगा, हर डाउट, है ना। क्योंकि जितना इसका मैंने हेडिंग लिखा है, लेसन्स ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे, बेसिकली इसमें क्या ही होगा कि कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग अ वॉर स्पेशली, क्योंकि उस आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ख़राब होते हैं। जैसे आपको पता है कि जापान, हिरोशिमा जहाँ पे है, जापान में जब न्यूक्लियर बम ड्रॉप किए गए थे, आज भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो काफ़ी डिसेबिलिटी और उसके साथ पैदा होते हैं, और काफ़ी ख़राब है, मतलब ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइन, नॉट अ गुड थिंग कि न्यू बॉर्न बेबी को अलग अलग रेडिएशन की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है, अलग अलग डिजीज़ से। तो ह्यूमैनिटी को मद्देनज़र रखते हुए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल एक्शंस लें। मेरा मानना है, ओपनहाइमर तो मैंने देखी है मूवी, मेरा मानना है कि यूएस के पास ऑप्शन था कि वो न्यूक्लियर बम ना बनाए और वॉर ख़त्म हो जाए, बट ठीक है उन्होंने डिसीजन लिया, उनको भी कुछ डेटेरेंट चाहिए, तो डेटेरेंट, एज अ डेटेरेंट उन्होंने यूज़ किया। डेटेरेंट मतलब सामने वाले को बस डराने के लिए कि हमारे पास ये है, कुछ तुमने आलतू फालतू काम किया, हम ये पंगा लेंगे। ऑब्वियसली पर्ल हार्बर पे कुछ हुआ था, वो काफ़ी लंबी कहानी है। आपको अगर हिस्ट्री जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, वो भी उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप ये पढ़ सकते हैं आर्टिकल, इसका सार मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। ओके, करंट अफेयर एनालिसिस, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। एससी स्टेज राहुल्स कन्विक्शन फॉर मोदी सर ने रिमार्क, it says Surat court failed to give even one reason for sentencing Congress leader to 2 year jail term that resulted in his disqualification from MP. However, it adds remark was not in good taste। ये पूरा आर्टिकल आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पूरे आर्टिकल में क्या है। सूरत कोर्ट ने बोला था उसको सज़ा दी थी 2 years जेल, और अगर 2 साल जेल किसी एमपी को मिलती है तो उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ती है ना, इस वजह से उनको हटा देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आके क्या बोला कि सूरत कोर्ट के पास एक भी रीज़न नहीं है बताने का कि क्यों हम लोग को राहुल गांधी को हटाना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। उस वजह से उन्होंने स्टे करके, और अपेरेंटली राहुल गांधी अब वापस एमपी बन जाएंगे। आई थिंक पता नहीं आज या कल शायद बन जाएंगे, और वापस सदन सेशन में पार्ट ले सकते हैं लोकसभा। पता नहीं उनको उनका वायनाड का बंगलो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कम्प्लीटली पॉलिटिकल। इसी स्टेज राहुल्स कन्विक्शन फॉर रिमार्क, सेम है, कुछ आर्टिकल वगैरह लिखे हुए हैं का, मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा।
आप पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, सेम ही बात है। सार मैंने आपको बता दिया है ना। अब अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर किसी भी एमपी को 2 साल का जेल टाइम मिला तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, या कुछ ऐसे फैक्ट्स आप एक बार गूगल कीजिए। आप भी कुछ थोड़ी मेहनत कीजिए, आपके लिए भी काफ़ी है, क्योंकि जब खुद गूगल करते खुद ढूंढते हैं तो ज़्यादा रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है एग्ज़ाम के टाइम एज़ कम्पेयर टू अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूँगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल तो पॉलिटिकल ही है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो है मैंने बोला आपको, इसके अलावा बस हाँ इसमें इतना ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स आर एट रिस्क ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड बाय ट्यूशन सेंटर्स सर्वे। ओके। फटक से पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स इन बिहार आर इन डेंजर ऑफ बीइंग चीपर। हाँ पढ़ाई का ठीक है, सर्वे डायरेक्ट बेनिफिट, अभी हाँ ये एक चीज़ आपको मैं समझाऊंगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है। डीबीटी मनी हैज नॉट ऑलवेज reach the children or their parents as it is conditional on certain RTA continuous social ओके, समझ गया। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, सिंपल चीज़ लिखी है आपका जो बिहार का, बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स आर एट रिस्क ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड बाय ट्यूशन सेंटर। अब मैं आपको लॉजिकली समझा रहा था, ठीक है। बिहार में क्या है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल, हर स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल, बिहार में सब जगह, ठीक है। अब गवर्नमेंट स्कूल की जो फीस है वो बहुत कम होती है, गर्ल्स के लिए तो फ्री भी है ना। लेकिन क्वालिटी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। मतलब अच्छे टीचर्स भी आते हैं लेकिन फिर वो एनवायरनमेंट नहीं रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर में इशू होता है, काफ़ी सारी चीज़ों में इशू होता है। तो अब बिहार में लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं चीप, कम पैसे में, कम पैसे में ये कर रहे हैं। इवन बिहार के गवर्नमेंट स्कूल से भी कम पैसे में वो लोग प्लान कर रहे हैं कि हम प्रोवाइड करेंगे तुम्हें, क्या देंगे, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। जैसे ही क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रॉमिस हो चुका है, पेरेंट्स को पता है गवर्नमेंट स्कूल में वैसे भी ज़्यादा फीस लग रही है, आजकल डिग्री का जो वैल्यू है, फॉर्मल डिग्री, उसकी वैल्यू भी कम हो रही है, स्किल्स इंपॉर्टेंट है। स्किल्स कहाँ से आएंगे, जब समझ के सीखेगा, करके सीखेगा बंदा। तो अगर कोई ट्यूशन क्लासेस प्राइवेट वाले कम पैसे लेके नॉलेज दे रहे, समझा रहे, जब बाद में जाके आपके इंटरव्यू टेस्ट में पर्सनैलिटी आपको ग्रूम कर रहा है आपको, तो क्यों क्यों बंदा जाएगा कि यार बिहार गवर्नमेंट में उससे कम फीस में मैं ट्यूशन से सीख लूँगा सब कुछ। कोई एग्ज़ाम देना है तो लोग करस्पॉन्डेंस के थ्रू डिग्री ले लेते हैं, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आ गए अब तो, मतलब डिग्री निकालने के लिए, ताकि क्योंकि डिग्री की इंपॉर्टेंस क्या है कि जॉब के टाइम पे आपको डिग्री दिखानी पड़ती है कॉलेज की। लेकिन डिग्री के लिए कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं है, आप करस्पॉन्डेंस के थ्रू कर सकते हो, सिर्फ एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हो, एग्ज़ाम के लिए प्राइवेट ट्यूशन लगा सकते हो, वो प्राइवेट ट्यूशन का फीस और कम होता है। तो ओवरऑल इट्स, आई फील इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, है ना, इट्स अ विन विन। अब होता क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है देखिए, एक टर्म लिखा है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है, ये इकोनॉमी का पार्ट है, जब मैंने पढ़ा था, है ना। तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट, और बोलती है आपको उस पैसे का जो करना है वो कर लो, है ना। कभी कभी क्या होता है, समझो आपको सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है आपको फर्टिलाइज़र पे, अगर फार्मर्स की देखा जाए, ठीक है, फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है फर्टिलाइज़र पे। लेकिन हर कभी कभी फार्मर्स को सब्सिडी नहीं चाहिए होती है, वो बोलते हैं कि मुझे सब्सिडी, मतलब मुझे फर्टिलाइज़र पे नहीं चाहिए, मुझे किसी और चीज़ पे चाहिए, किसी मशीन पे चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है, अब हमें समझ नहीं आ रहा किस किस का, हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर, हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, और आप उस पैसे का फर्टिलाइजर लो, मशीन लो, कुछ भी लो, आपका स्टोरेज मेंटेन करो, कोल्ड स्टोरेज कुछ भी मेंटेन करो, उस पैसे से आप जो करना है कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, DBT money does not always reach the children of the parents as it is conditional on 70% attendance, also requires आधार लिंक पैन। अभी आप आधार को पैन से लिंक कर, इतना लंबा लंबा काम करो तो ऑब्वियसली मुश्किल तो आएगी, है ना। तो इसलिए लोगों को डीबीटी नहीं मिल पा रहा है, तो
लोगों ने तो रियलाइज कर लिया, अब डीबीटी भी नहीं मिल रहा, तो अभी कैसे काम करें। वो वही है ना। आप एक बार अगर आपको समझना, तो वापस एक बार ये इस सेक्शन को देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, सेम ही चीज़ मिलेगी जो मैंने बोला, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसा ये नहीं मिलेगा, बट इट्स अ गुड अप्रोच, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नेक्स्ट देखते हैं। Assam's Manas Tiger Reserve 63% short of sanctioned staff, एनवायरमेंट मिनिस्टर टोल, ठीक है। अच्छा है। असम का जो माइनस टाइगर रिजर्व है उसमें 63% शॉर्ट है, 63% शॉर्ट ऑफ सैंक्शन स्टाफ। सिंपल है इसका मीनिंग, 100 लोग अगर अपॉइंट करने थे, सिर्फ 37 लोग जॉब पे, 63 जॉब्स एम्प्टी। यार अगर इतने जॉब एम्प्टी रहते तो गवर्नमेंट को फटाफट फिल करना चाहिए ना यार, लोगों को भी नौकरी चाहिए। तो आप फटाफट एग्ज़ाम लिखवा लो, चाहिए तो आसाम में, या कुछ भी कर लो, कोई भी आपका तरीका है, लेकिन फालतू में अब टाइम भी वेस्ट हो रहा है, लोगों का पैसा भी वेस्ट हो रहा है, वो पैसा नहीं कमा रहा इसकी वजह से, है ना। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर ने बोला है, बाकी आप इधर पढ़ सकते हैं जो भी है, कुछ नंबर दिए होंगे। हाँ देखिए क्या लिखा है, पे ऑफ द होम गार्ड वॉज इंक्रीज फ्रॉम 300 टू 767, 767 रुपीज़ पर डे, बहुत ही ज़्यादा है। आप कैलकुलेट करके देखिए, 767, चलो 800 ले लेते हैं, 800 नहीं 700 ले लेते हैं, 700 अगर पर डे मिल रहा है 30 डेज, कितना, 21,000, 21,000 पर मंथ, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। किसी की भी लाइफ बदल सकते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनका, उनके बच्चों की लाइफ, फ्यूचर जनरेशन की लाइफ, 21,000 पर मंथ। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ आप पढ़ सकते हैं, एक बार आर्टिकल, सार मैंने आपको समझा दिया इधर इसमें से बॉक्स में, है ना। और सैलरी का भी बता दिया आपको, नंबर क्या होगा करके। हाँ, एक एक्स्ट्रा काम आप कीजिए, जो मैं आपको एनकरेज करूँगी आप करें, कि यहाँ पे लिखा है आसाम में मानस टाइगर रिजर्व, आप आसाम में सारे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और बर्ड सेंचुरी हो गया, जो भी चीज़ है वो सब मार्क करके लिख के रख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने के लिए अच्छा होगा, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। मेंस में तो खैर इतना काम नहीं आता, लेकिन प्रीलिम्स के लिए काफ़ी काम आएगा आपको, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। आईएसओ बिल पेव्स वे फॉर मोर इंटीग्रेशन ऑफ फ्री सर्विसेज, अभी क्या लिखा है देखते हैं। मोमेंटम गेन्स फॉर प्रपोज्ड reorganization of Indian military into integrated theater commands. The Lok Sabha on Friday passed the Inter-Service Organization. It seeks to empower Commander-in-Chief and Officer in Command of Inter-Services Organization with all disciplinary and administrative powers in respect of personnel serving in or attached to organization to defense ministry. The ISO Bill 2020 is essentially an enabling act, and it does not propose any change in the existing service rules regulations which are time tested and have withstood judicial scrutiny over the last 6 decades. ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी एग्जाम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा मोस्टली। समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि 3 सर्विसेज है, तीनों को वो लोग मर्ज करने का सोच रहे हैं। हालांकि आप स्किप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउस पैनल बैट्स फॉर लोअर मिनिमम एज टू कंटेस्ट पोल्स, ओ माय गॉड, कुछ अलग ही न्यूज़। होल्डिंग द यंग इंडिविजुअल्स कैन बी रिलायबल रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, याद रखिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, एक बार गूगल कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। has recommended reducing the age of contesting Lok Sabha election to 18 years. Currently लोक सभा इलेक्शन, आपको अगर लोकसभा में इलेक्शन में खड़ा होना है तो 25 साल, सिर्फ 25 साल की उम्र चाहिए। लेकिन अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी चाहती है कि 18 साल में लोकसभा इलेक्शन के लिए खड़े हो सकें लोग, मतलब हमारे यंग जनरेशन को, यंग ब्लड को वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं असेंबली में। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। विच इज़ द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग ऑफ इंडिया, तो वो लोग बोल रहे हैं अगर 18 साल में आप वोट कर सकते हो तो 18 साल में लीड क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, सही बात है। दिस व्यू हैज हाउएवर contested by election commission of India, which said that it was unrealistic to expect 18-year-olds to possess necessary experience and maturity for being members of parliament and state legislative bodies. बिल्कुल सही।
इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही कहा, 18 साल के बच्चे को इतना मैच्योर होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक्सेप्शनल केसेस मिल सकते हैं पर बहुत मुश्किल है। वरना होगा क्या, देखिए 18 18 साल के जो बच्चे हैं जिसके पास जिसके डाल काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, वो लोग खड़े हो जाएंगे इलेक्शन में, जीत जाएंगे। 18 साल के आपको मिल जाएंगे, कितने सीट है, टू कितना 545 सीट है, उसमें से अगर 200 300 लोग 18 साल के निकले, फिर वो लोग रैश डिसीजंस लेंगे। अब इन लोगों ने जो बच्चे हैं इनको गेमिंग पे, जो मैंने फर्स्ट आर्टिकल आज पढ़ा था, गेमिंग पे 28% जीएसटी लगा दिया, तो हल्ला कर रहे हैं ये लोग। इनको क्या पता सोशलिस्ट अप्रोच क्या है, मतलब एसेंशियल एजुकेशन भी तो चाहिए ना, पता चलना चाहिए कि कहाँ पैसे कहाँ लगाने। उड़ाते रहेंगे पैसे, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है मेरे हिसाब से। और इलेक्शन कमीशन यहाँ पे एकदम सही कह रही है। एट प्रेजेंट मिनिमम एज फॉर पर्सन टू कंसिडर असेंबली पोल्स इज 25 है, जैसे मैंने बताया, विच वन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और स्टेट असेंबली एट 30 ईयर्स। अगर राज्यसभा का बनना है तो कितना 30 ईयर्स चाहिए मेंबर बनने के लिए। The committee जो है public grievance law says that the viewpoint of reducing the age was reinforced by a vast amount of evidence such as global practices increasing political consciousness among young people and advantages of youth representation। ठीक है, मतलब लोगों में कॉन्शियस बता रहे कॉन्शियसनेस तो है, अवेयरनेस है। मतलब आजकल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, इंस्टाग्राम के थ्रू न्यूज़ फटाफट पहुंचती है, तो लोग जल्दी ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, और लोग काफ़ी अवेयर है एज कम्पेयर टू पहले जब ये रूल सेट किया था कि 25 साल का आपको होना पड़ेगा। तो लोगों ने सोचा था 25 साल तक बंदा दुनिया देख लेगा और उसके बाद वो लोकसभा में एमपी बन सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन फटाफट ट्रैवल कर रही है इंटरनेट के थ्रू, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक, जो भी आपके थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, तो वो कमिटी को लग रहा है कि यार ये सब एक्सपीरियंस तो 18 साल तक भी लोग काफ़ी कुछ कर देते हैं। हालांकि क्या वो लोग इतना प्रेशर हैंडल कर पाएंगे इज द बिग क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए, आफ्टर एग्जामिनिंग वेरियस कंट्रीज प्रैक्टिसेस कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, committee observes that minimum age for candidacy in national election needs to be 18 years. These nations examples demonstrate that young individuals can be reliable and responsible political participants. It is said the report submitted to the parliament on Friday। ओ अब मैं समझ में आ रहा। तो पार्लियामेंट्री कमेटी बोल रही है कि जो कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा, इन कंट्रीज में यंग लोगों को काफ़ी चांस दिया जा रहा है लीड करने का। क्योंकि उनके पास काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, वो लोग फटाफट वेलफेयर के लिए काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया भी काफ़ी अच्छा है। यंग ब्लड अगर आएगा तो वो काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें लेके आ सकता है, कोई बिल पास करने के लिए, इस टाइप का बिल पास करने के लिए। वो दोनों लोग काफ़ी अच्छा बात कर रहे हैं। हाउएवर द इलेक्शन कमीशन इसके अगेंस्ट है। Election Commission in deposition before the committee said that it has already considered the issue of aligning minimum age for voting and contestation to the, but found that it is unrealistic to expect 18 in order to possess the necessary experience and maturity of the responsibilities। ठीक है। Okay, therefore the minimum age and contesting election is appropriate। The commission does not favor reducing the age requirement। ठीक है। इलेक्शन कमीशन इसके अगेंस्ट है बेसिकली। तो ये जो आर्टिकल है, मतलब दो लोग के बीच में, पार्लियामेंट्री कमेटी वर्सेस इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि 18 साल के बच्चे लोकसभा के इलेक्शंस में हिस्सा ले, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी चाहती है कि ऐसा हो, 18 साल के बच्चे ले लें। ठीक है। अब अगर मेरा पर्सनल सजेशन, जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम एक ऐसा रूल लेके आए कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेट्स से कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ लीजिए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से समझिए 3 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टी के। हर कैंडिडेट के साथ आप एक 18 साल का, 18 to 25 के बीच का एक को साथ में रखिए। तो जब भी एक बंदा जीत के आएगा, लेट्स से अब राहुल गांधी इस में इकोनॉमी की बात कर लेता हूँ, राहुल गांधी अगर जीत के आ गए, है ना, तो उनके साथ एक 18 to 25 ईयर्स का बच्चा भी रहेगा। तो रोज जो जो राहुल गांधी जैसे जैसे चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, वो क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, है ना, वो क्लोजली ऑब्जर्व करेगा। उसके पास 7 साल का टाइम है, हालांकि जीत के सिर्फ 5 साल ही मिलेगा ऑब्वियसली। तो 18 to 23 की एज तक वो देख सकता है कि चीज़ें हैंडल कैसे की जाती है, किससे कैसे बात किया जाता है, राहुल गांधी कैसे ऑल द टाइम उनके साथ। अगर इट्स लाइक एन असिस्टेंट, असिस्टेंट टू द एमपी, एमपी असिस्टेंट अगर कॉन्सेप्ट लेके आया जाए,
जिसकी एज हो 18 से 25 के बीच में। उसके बाद जब उसने सब कुछ देख लिया है कि हाँ 18 से 25 के बीच में उसने सब देख लिया कि कैसे लोगों को हैंडल करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे बिल पास करते हैं, एक बार उन्होंने पूरा ये देख लिया, फिर 25 18 टू 23 हो गया, है ना, फिर आप 25 के एज के बाद इलेक्शन में खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक आइडिया प्रपोज किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट आप सुन रहे हो मेरी बात है है ना। तो अब एक और यूज है, नर्सिंग स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट टू स्टडी फॉरेन लैंग्वेज। अच्छा, डिफरेंट स्टेप है काफ़ी, इनफैक्ट मुझे समझ में भी नहीं आया कि स्टेप क्यों लिया गया। देखते हैं आर्टिकल पढ़ के, है ना, शायद आर्टिकल पढ़ के कुछ समझ में आ जाए। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम हैज इनिशिएटेड द एडिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कोर्स, मतलब ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, ऑप्शनल वर्ड इंपॉर्टेंट, इन बीएससी नर्सिंग and midwifery program. The Indian Nursing Council has issued a notification August 2nd announcing the new initiative aimed at promoting internationalization in education. The program also hopes to enhance the overall personality development of nursing students and equip them with valuable skills for their future careers. The optional foreign language course will provide nursing students with an additional advantage during their degree diploma. Students will have the opportunity to choose from a range of foreign languages including French, Greek, German, Latin, Irish, Korean, Spanish, Portuguese. This diverse array of language options ensures students can select a language that aligns with their interest and career aspirations. Status senior official, equitable education, language process conducted by hiring specific language teacher and the expenses for hiring system will be borne by the respective nursing institution. The INC the participation will not be charged government fees for the अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली ये जो स्टेप उठाया गया कि नर्सिंग स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट टू स्टडी फॉरेन लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, रीज़न एक ही है, बहुत सिंपल है कि हमारे इंडिया में नर्सिंग का शायद लोगों को जॉब्स इतना मिलता नहीं है ना, या फिर प्रोसेस कभी बहुत लंबा हो जाता है, जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो फंडा सिंपल है, फॉरेन लैंग्वेज सीखो। लेट्स से बंदे ने बोला मैं स्पेनिश सीखूंगी, डिग्री इंडिया में करूंगी और फिर स्पेन चली जाऊंगी, स्पेन जाके जॉब करूंगी, तो इसके लिए पहले ही स्पेनिश सीख लो। ठीक है, काफ़ी कॉमन है, मतलब इंजीनियरिंग तो लोग करते ही है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स रहते हैं मैक वाले, मुझे एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है, जनरली वो लोग जर्मन सीख लेते हैं क्योंकि जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियर्स का स्कोप है काफ़ी, और फिर वो लोग जर्मनी के कॉलेज में अप्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ पे एमएस मास्टर्स करने के लिए फीस भी नहीं भरनी पड़ती है। जर्मन आ गया तो आप बहुत सारे कोर्सेस ले सकते हो जो भी जर्मन में। तो जर्मनी वाले ने जानबूझ के जर्मन में रखा है कोर्सेस ताकि लोग वहीं पे रह जाए, वहीं पे जॉब करें। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, मतलब लोग, गवर्नमेंट चाहती है कि वो भी ऑप्शन रखे, कंपल्सन नहीं है कि अगर आपके पास बाहर जाने के पैसे है, फ्रांस जाने के लिए तो फ्रेंच सीख लो, जर्मन जाने के लिए जर्मन सीख लो, आयरलैंड जाने के लिए आयरिश सीख लो, साउथ कोरिया जाने के लिए कोरियन सीख लो, स्पेन जाने के लिए स्पेनिश सीख लो, और पोर्चुगल जाने के लिए पोर्चुगीज सीख लो। तो ही आप उस कोर्स के लिए ऑप्ट करें जो फ्री में आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप जा सकते हैं। इंडिया में अगर आपको बाई चांस जॉब नहीं मिल पाया तो बाहर नहीं मिल रहा है, कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी, है ना, सही है, अच्छा डिसीजन है। देखते हैं लोग कैसे इसका फ़ायदा उठाते हैं। ओके, अब हमारे दो ही आर्टिकल बचे हुए हैं। पहला है रशियन वॉरशिप डैमेज एज यूक्रेन टारगेट्स ब्लैक सी पोर्ट विद ड्रोन्स। ठीक है, आर्टिकल बेकार है, कुछ फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल ही मत पढ़िए आर्टिकल। ब्लैक सी का लोकेशन देख लीजिए, है ना, और और यूक्रेन रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या क्या वाटर बॉडीज आती है, एक बार देख लीजिए इस पे, एटलस पे, गूगल से या कहीं से, जो भी है। बस ये आर्टिकल वार्टिकल मत पढ़िए, बकवास चीज़ें, कोई एग्जाम यूपीएससी में तो बिल्कुल ही काम नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट है डीजीएफटी सस्पेंड लैपटॉप पीसी इंपोर्ट्स कर्व टिल नवंबर, ये तो पुरानी न्यूज़ हो गई है। डे आफ्टर it issued a notification restricting imports of laptops, PCs, tablets in South India with immediate effect. The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) on Friday suspended implementation of notification until November 1. Oh, after customs and official station at ports of entry started holding up shipments of specified electronic goods. अच्छा, तो सही है। तो जैसे ही इन लोग ने बोला
कि अब हम लोग इम्पोर्ट को हटा देंगे थोड़े टाइम के लिए, कर्व करेंगे। डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो बंदा है उसने बोला कि नहीं, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, नवंबर फर्स्ट तक। कब तक? नवंबर फर्स्ट तक। तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है कि तुम लोग ठीक है पार्ट वार्ट लेके आ रहे हो यहाँ पे असेंबल करो, जो भी कर रहे हो, या फिर बाहर से असेंबल करके लेके आ रहे हो, नवंबर 1 तक अपना काम खत्म कर लो। नवंबर 1 के बाद हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो ऑफिशियल्स, जो कस्टम वाले ऑफिशियल्स हैं, उनको फिर स्पेसिफिक स्पेसिफिक लोगों को वो लोग पकड़ रहे हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट आगे नहीं सकता। हो सकता है उनसे ब्राइब वाइब लेने की भी कुछ ट्राई कर रहे हो, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है ना, डार्क चीज़ चलती रहती है। तो उस, ताकि ये ब्राइब वाला चीज़ ना हो और सिलेक्टेड लोगों को टारगेट ना किया जाए, इसलिए डीजीएफटी ने बोला कि मैं सस्पेंड कर रहा हूँ नवंबर 1 तक, है ना, नवंबर 1 तक तुम लोग अपना अपना कर लो, उसके बाद देख लेंगे। Separately, government officials have sought to assure industry that most applicants seeking licenses for import of restricted electronic products would receive them promptly upon filling the ठीक है, बाकी तो वही है, सेल्फ एफिशिएंसी से द ऑफिशियल said that move an effort to bring self efficiency in electronics production even as they asserted the import curve noting to do with प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें की गई है कि हम चाहते हैं मेक इन इंडिया हो जाए सब कुछ। ठीक है, मतलब मेक इन इंडिया कर तो सकते हैं पर उसके लिए पैसे लगते हैं ना यार, पैसे कहाँ से आएंगे? आपको अगर फैक्ट्री सेटअप करनी है काफ़ी खर्चा लगता है। हालांकि पीएलआई के थ्रू ऑब्वियसली काफ़ी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो होपफुली ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और लोग करें। अच्छा, मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा आपको। 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो हमारे जो इंडिया ने और ग्रोथ कैसे होता है, देखो पहले आप एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाते हो, ठीक है, और फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो लोग यहाँ पे, एंड बाय यहाँ पे मतलब जिन लोगों ने लेट्स से कुछ टाइम, ठीक है, जो लोग यहाँ पे हैं, कोई भी लोग हो सकते हो, उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डाल देते हैं ताकि अब वो मैन्युफैक्चरिंग सीखें। और जो लोग फिर यहाँ पे रहते हैं उनको डाल देते हैं सर्विस सेक्टर में ताकि वो सर्विस सीख के फिर कंट्री का ग्रोथ होता है ऐसा एक्सपोनेंशियली। समझे? मतलब अगर ये ग्राफ है, ऐसी ग्रोथ होती है। हम लोग ने क्या कर दिया, गलती कर दी, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से कर दिया और फिर डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पे कूद गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरा ही इग्नोर कर दिया हमने। इसीलिए आज हम लोग को जो भी चिप्स वगैरह का जो है, सेमीकंडक्टर वगैरह में हमें प्रॉब्लम हो रही है। हम हमारे पास प्लांट्स नहीं है और फिर लैंड का रेट इतना बढ़ गया है, लैंड खरीदना प्रॉब्लम हो गया है, जिसके पैसे क्लियरेंस मिलना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलना मुश्किल हो गया। पहले ही अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें सेटअप कर देते तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी आसानी से मिल जाता था, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती अगर हम लोग पहले मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दें। अब हालत ऐसे आ गई है, हम वियतनाम जैसी कंट्री, आप गूगल सर्च कीजिए, वियतनाम जैसे कंट्री से पीछे है मैन्युफैक्चरिंग के, है ना, लोगों को वियतनाम पे ज़्यादा भरोसा है। चलो ठीक है, बढ़िया है। हाँ, बाकी आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए। एक मैं आपसे एडवाइस चाहता हूँ, मैं एक नया लैपटॉप लेने वाला हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जियो नोटबुक लूँगा। जियो लैपटॉप कुछ आ रहा है ना, तो अगर आप में से किसी को पता है कि ये लैपटॉप अच्छा है कि नहीं, और अच्छा है तो किस चीज़ में अच्छा है और कैसे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, है ना, थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। आज आपके लिए इतना अच्छा आर्टिकल लेके आया हूँ तो आप भी मेरी भी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, मेरा हेल्प गिव एंड टेक चलता रहेगा, है ना। बाकी अगर बताइए, आपको कुछ भी डाउट हो, किसी भी आर्टिकल में डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हर कमेंट को एड्रेस करूँगा, एवरी कमेंट, जितने कमेंट्स आएंगे सारे के सारे, एक को भी नहीं छोड़ने वाला, है ना। ठीक है, फिर चलो हो गया फिर, आज के लिए इतना ही बस, ठीक है। हैप्पी संडे गाइस। ये हाँ, और ये 5 अगस्त का था, ठीक है, और कल से कंसिस्टेंसी रहेगी, हर दिन का डालूंगा, है कि नहीं, टाइम डिफर कर सकता है। आप अपने टाइम फिक्स कर दीजिए कि मैं हर रोज़ इसी टाइम पे न्यूज़पेपर देखूंगा, उसके हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं कि आपको 4 तारीख का देना, 5 तारीख का देना, 5 तारीख का देना, है ना। चलो सही है, बढ़िया फिर। ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू।